Hello students, this is the fourth video lecture of Work and Energy, class 9th Science. So in this video lecture we would be focusing on another type of energy called potential energy. So in the previous video lecture we discussed about kinetic energy. In the lecture before that, the first video lecture we discussed about work. We started discussing work. Then we understand the correlation of work with energy and we understood what is kinetic energy. Next is potential energy. So as I said, there is a form of energy called mechanical energy. So mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. We are very well aware of kinetic energy. So now we are starting with potential energy. So what do we understand by potential energy? So it is generally referred as stored energy. Okay. So it is often referred as stored energy. Now how? Okay, let us take few examples. Let us take some daily life examples. Then we discuss the definition. After discussing these two things, the examples and the definition, we come to know why potential energy is often referred as stored energy. What is the reason behind it? Okay, so when I talk about the definition, the energy possessed by a virtue of its position or its configuration. So you would be saying that in bracket it may refer shape or size. So depending on the shape or size, depending on the position, okay, the energy which is possessed by a body is potential energy. This was the definition. Example जब तक नहीं लेंगे, you won't be able to get it. Let us take an example to clarify more regarding potential energy. When I say example, first, winding the key of the toy car. If you are able to recall, in the kinetic energy also I said that when we wind the key of the toy car and we place the toy car on any plane surface, the toy car starts moving. When the toy car is moving, that means it is possessing kinetic energy. From where did the kinetic energy arrive? By winding. When you wind, that means you are doing some work done, and this work done is stored in the car in the form of potential energy. Repeating again, see what did I say? That once you wind the key of the toy car and placed it on a horizontal surface, what did you observe? That the car starts moving. Why? Because it is possessing energy. What kind of energy? Kinetic energy. Since it is possessing kinetic energy, the car starts moving. Are you getting? So that is kinetic energy. From where did this kinetic energy is possessed by this body? Some work done has been done. Work हुआ उस पे. Then and then only it is possessing kinetic energy. Okay, so वो कैसे हुआ work? So what is the work done? That is the winding of the key. तो जब तुमने wind किया, that means you are storing your work done in the form of energy. And the storing of work done in the form of energy is nothing but potential energy. Done? Okay. Let us take another example wherein water stored at a height in a dam. So basically dam is used to generate electricity, is used to the flowing water, the gushingly flowing water. क्यों वो gushingly flow करता है? क्यों इतनी जोर से नीचे गिरता है? Because the water is at height. और अगर height से you have blocked the flow of water, and when you open the doors of dam, what happened? The water which was stopped for a time, with a force it flows down. It gushes down. So that means what? Right now, when the water was at a height, stored at a height, that time it was possessing potential energy. As soon as the door was opened, okay, the water start flowing with a
high force, and with this force you can say that the water now is having kinetic energy. Earlier when it was stored at a height, okay, then it is having potential energy. यानी अगर वो, क्योंकि वाटर कभी ना कभी तो हाइट पे लेके गए होंगे ना, वाटर वुड बी एट दिस पॉइंट, और वो दिस पॉइंट से ऊपर लेके आने में जो वर्क डन लगा, तो that work done is stored in the form of potential energy. Similarly, कोई भी ऑब्जेक्ट तुमने उठाया है, this rises, this leads to the rise of second topic. I hope these two examples are clear. This is something known as elastic potential energy. स्प्रिंग को वाइंड किया और फिर वो अनवाइंड हुआ, तो वो स्टोर्ड एनर्जी इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना. धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है, पेशेंस रखो तो सब समझ आएगा, है ना. वैसे हाइट पे पानी था, उसको स्टोर करके रखा था, मतलब उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है. दिस वी कैन अंडरस्टैंड विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. भाई कोई हाइट पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Why gravitational potential energy? So suppose let us consider an object having mass m. Let us consider an object having mass m, and what did I make that object was present on the ground. I put place this object which was present on the ground on a particular height. So I make this object move from the ground level to a particular height. Okay, so while doing this, while making the object move from the ground to the height, what I am doing, I am applying the force, I am doing the work done against gravity, है ना. मैं यहाँ से ऐसे उठा रही, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, यहाँ, ग्रेविटी यहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ उठ रहा है ना. so I am doing work done against gravity. So that work done which I am doing to lift the object from ground to a specific height, that work done is stored in the form of potential energy. Okay, see here, work done in raising it, you can define this gravitational potential energy at a point. मान लो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इतने हाइट पे रखा. ओके, सो यहाँ से यहाँ इस हाइट तक पहुंचा, सो वर्क डन करना पड़ेगा ना. वी हैव टू डू सम वर्क टू मेक दिस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम हियर टू अ सर्टेन हाइट. चल, वर्क डन किया, लेकिन वर्क डन हम कैसे कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी नीचे लग रही, हम वर्क डन ऐसे कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या बोला कि वर्क डन इज इन रेजिंग. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्या कह सकते हैं कि एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ग्राउंड पे, वहां से वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी. कोई भी एक पॉइंट जो हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो अबव द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी. दैट वर्क डन is nothing but then ultimately is stored in that object in the form of gravitational potential energy. क्योंकि work done was something related to gravity, was against gravity, therefore this potential energy is referred as gravitational potential energy. So when I made this object move from the ground level to the top, to the height, at a particular height, है ना, what happened, I applied or I do some work against gravity. Gravity के against मैंने work किया and ultimately the object was at a particular height. This height, now at this height, it is possessing some energy. कहाँ से आई? When you did some work, तुमने कुछ काम किया, इसलिए उसके पास एनर्जी है. So that work done is stored in the form of potential energy. Clear? चल. So now let us do expression for potential energy, है ना. Potential energy को अब क्या करते हैं, derive करते हैं. Okay, so you see, this is the object, this is the object, same object है, and
trying to show that this object is being moved from the ground level to a certain height, say h. So suppose the mass of this object is n, okay, and is made to move from ground to a particular height. This height is small h. Done? Clear? Okay. Now the force is applied against the gravity. Force is what? Mass into acceleration. According to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. We observe here, mass is same, but what is acceleration? Gravity. Acceleration due to gravity, mg. This is the force. What is the displacement? What is the displacement you observe here is this h. So we are having force, we are having displacement, and we also know that work done against gravity, work done against gravity, है ना, ये gravity के against किया work done is equal to gravitational, is equal to gravitational potential energy, small p, potential energy. So potential energy is, can be represented like this, as in case of textbook. The textbook represents potential energy like this. But I was saying that work done, since this work done is done against the gravity, and work done against gravity is equal to what? Gravitational potential energy. Ultimately we are deriving the expression for potential energy. You can also refer potential energy or represent potential energy like this, either PE or EP. Okay, so I would prefer more like this, because from my childhood, from when I was like you, I was of your age, from that point I am using potential energy, the representation of potential energy like this. So by default my habit is to write potential energy like this and not this, but this one is given in textbook. So whichever way you want to write, you can write, it is perfectly okay. When I say potential energy, okay, so potential energy is what? Energy, that means is equal to work done. And what is the formula for work done? Force multiplied by displacement. If you observe, the force which is applying is in the upward direction, the displacement is taking place in the upward direction, work done is positive. What is the force we calculated? mg. What is the displacement? h. mgh. So potential energy can be written as mgh. So the expression for potential energy is what? mgh. Clear? Okay. Next case, what you have to understand is that while making the object move from one point to another, the potential energy depends on the height, or the work done depends on the displacement and not the path. That means the potential energy is path independent. And what is path? What is dependent, independent? That is, suppose this is an object of mass m. This is the same identical, although it doesn't appear, but you can imagine that these two objects are identical. Okay, so I am making this object move through a certain height up to this point. Okay, this is suppose height h. If you observe this height is also the same. This height is also the same. I want to place this object at this particular height. So I am using two paths. This is path 1, कि मैं सीधे से इसको उठा के यहाँ रख दूँ. Another way is to पहले इसको ऐसे सीधा उठाया, फिर थोड़ा इधर से खिसकाया, then again I moved up, then again I moved this towards this side, and then ultimately I placed this object at this height. So I changed the path. मैंने रास्ता चेंज कर दिया to reach that height. तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा,
या ऐसे 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 करके फिर रखा, doesn't matter, the potential energy remains same. Why? See, what is the formula for potential energy? m तो सेम ही रह रहा है, इधर से इधर रखा, m would same है ना, m would remain same, it would not change. g, acceleration due to gravity, always remains constant, you know the value also. If we talk about h is same for both the cases, either you move like this or move like this, the height is ultimately same. So potential energy does not depends on the path, it depends on the initial position and final position. क्या इन दोनों की initial position same है? हाँ. क्या इन दोनों की final position same है? Yes. So since the initial and final positions are same, okay, so it depends on the initial and final position of the object. What depends on initial and final position of object? The potential energy. It depends on the height, total displacement, and not the distance or not the path. Okay, therefore I said path independent. भाई कैसे भी रखो, इतना height किया, that is the thing. Are you getting? So this is the main important concept. We move down to next, that is factors affecting EP, potential energy. So that is mass and height. As you can observe this mgh, the g to would always remain constant. The change would be in mass or in height. So potential energy, if you see carefully, potential energy is directly proportional to mass. अगर मैं potential energy increase करती हूँ तो mass भी increase होगा. Similarly, potential energy, or no, you can write like this, potential energy is directly proportional to height. So as the height increases, potential energy also increases. If we take a look upon the graph, suppose on y-axis there is potential energy and on x-axis there is mass. So how the graph would be? Since it is directly proportional, the graph would be formed like this. Same way, in the same way, when mass is constant and we are increasing height, here the height is constant. Okay, when mass is increasing, that means height is constant. Here the mass is constant. Mass को constant रख के we are increasing height. जब मैं height increase करती हूँ तो potential energy भी साथ साथ में increase होती जाएगी. So it would be forming something like this. Same. So these are the two factors affecting potential energy, that is mass and height. And how they are affecting? Directly. If I increase the mass, potential energy will increase. If I increase the height, potential energy will increase. Clear? Okay. Next is, are various energy forms interconvertible? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है क्या एनर्जी? Yes, obviously, and that is known as transformation of energy. Transformation of energy मतलब क्या? कि एक form of energy is converted into another form of energy. Okay, let us take an example. An object is released from a height. You see here, this is the representation कि एक object है, height पे है, उसको release किया तो वो नीचे fall हो रहा है. जब उसको release कर रहे थे, okay, so यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे इट वुड बी जीरो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना. यहाँ पे जब मैंने एक कोई भी चीज है जिसको अभी मैं बस गिराने वाली, उसको मैंने हाथ में रखा है, मतलब अभी तो वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स नो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी ही जीरो है, याद करो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. अगर वेलोसिटी टर्म जीरो हो जाती है, यानी ये पूरा टर्म जीरो. ठीक है. सो इनिशियली जब you were holding the object before the free fall of the object, when you were holding the object, at that time the velocity was zero. At that time the velocity was zero. Okay, so kinetic energy is totally zero. Whatever the object is possessing at that point is potential energy. ठीक है. h है हाइट, g लग रहा है, उसका खुद का मास है, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही तुमने रिलीज किया, धीरे 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 क्या आ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है. अब जीरो से
वेलोसिटी क्या हो रही है 5, 10 एंड सो ऑन। मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी आ रही है मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी आई। दैट मीन्स एट बी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, mgh। देखो जब नीचे गिर रहा है तो ऐसा तो नहीं उसका मास कम होगा, नीचे गिर रहा है तो ऐसा तो नहीं तो g जो है वो बढ़ता जा रहा है। द ओनली थिंग इज चेंजिंग इज हाइट। जैसे जैसे नीचे आ रहा है हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सी, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। फिर से रिपीट करती हूँ। पॉइंट ए जब ऊपर था बिफोर फ्री फॉल, बस फ्री फॉल की तैयारी में था, तब काइनेटिक एनर्जी आई सेड इज जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो। एट दैट टाइम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि वो पूरी हाइट h है ना, फुल जहां लास्ट पॉइंट ऑफ हाइट तक है। सो वो हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगा उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जब वो कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा है मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी आ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे जीरो थी, जैसे जैसे नीचे आ रही है द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बट व्हेन यू ऑब्जर्व पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मैं फिर बता रही हूँ कि क्योंकि जब नीचे गिर रहा है तो हाइट कम होती जा रही है। जैसे जैसे हाइट कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अब जब वो नीचे आ गया, जब वो ग्राउंड पे आया, दैट टाइम द काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो, देखो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। उसने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, हाइट क्या हो गई जीरो, हाइट क्या हो गई जीरो। सो mg इंटू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई हाईएस्ट। यहाँ पे नीचे आने वक्त पूरा इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट हियर इन द मिडल केस थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी ना तो लूज हो रही है ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना, ना तो क्रिएट हो रही है ना तो डिस्ट्रॉय हो रही है। द ओनली थिंग इज हैपनिंग इज द चेंज, इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पोटेंशियल था, फिर पोटेंशियल काइनेटिक दोनों, फिर काइनेटिक हो गया, यानी पोटेंशियल से काइनेटिक हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज अब हम इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पे ऐसा था अब ऐसा करते हैं। ठीक है, स्टोन है उसको ऐसे हाइट से फेंका, तो कुछ वेलोसिटी के साथ हमने स्टोन को फेंका। जब फेंक रहे हो नीचे से ऊपर तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि तुमने उसको कुछ वेलोसिटी दिया, उस वेलोसिटी से वो ऊपर गया। जैसे ही वो ऊपर जा रहा है एक पॉइंट आएगा कि वहां पे जाके वो रुक जाएगा, बाद में वो नीचे आता है ना। जैसे अभी मैंने ये डाला ऐसे, मैं सच में नहीं डालूंगी ऑब्वियसली, तो मैं जब ऐसे डाला तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ रुकेगा और फिर आएगा नीचे, है ना। जो वो रुका दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि उसने हाइट कवर की ना। पहले जब तुम डालने वाले थे तब तुमने कुछ वेलोसिटी दी, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जब वो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। दिस इज जस्ट ऑपोजिट केस। ठीक है, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से मैं इस पे आती हूँ, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, whenever energy gets transformed total energy remains constant। ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है ना वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो चेंज होगी। तो वो मैं ये एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ओवरऑल लॉ कहना क्या चाहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
एनर्जी को सिर्फ तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से अनदर, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तुम उसे क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। द ओनली थिंग यू कैन डू विथ एनर्जी इज टू चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, सो यू नो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल लेके वी अंडरस्टैंड व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्राइंग टू से। यहाँ पे देखो फिर से यही समझना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको फ्री फॉल कराने वाले हैं एट अ पर्टिकुलर हाइट h। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि सारे पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी देखो कह रहा है ना, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हो? टोटल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। ओके, व्हेन आई से फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको फ्री फॉल कराया जा रहा है, ठीक है, एट अ हाइट h, एक हाइट h पे उसको रखा गया है। देखो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? अभी बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पॉइंट ए पे? द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। अभी बॉल को सिर्फ ऐसे एक स्टांस है, ठीक है, एक हाइट पे उसको रखा है ना, वो मूव कर रहा है, मतलब वो रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, दैट इज हाफ m0 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो फ्री फॉल के टाइम पे या हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? 0। ये समझ आया? तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज 0। ओके, लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। सपोज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, g gravitational acceleration due to gravity, g, h is the distance, h, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। अब हम फाइंड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिखो, या ऐसे मैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही लिखती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। तो तुम देखो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है एट पॉइंट ए इज mgh। क्लियर? अब मान लो तुमने उसको बॉल को छोड़ दिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फिर तुम नोटिस करते हो, पॉइंट बी पे क्या है? अगर मैं पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी देखूं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, सो वेलोसिटी के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी और हाइट आ रहा है, सो आई कैन राइट 2gh, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो लेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियली तो वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, ये यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये माइनस में है, सो u स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, तो ये 0 प्लस 2gh, यानी v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2gh, यानी ये वेलोसिटी है एट पॉइंट बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, ये पता चला कैसे आया, है ना? सो अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू m, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2gh, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा? mgh। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? mgh। ये पॉइंट बी पे
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh। अब क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। ये समझ आया ना कैसे किया, वापस बताते हैं एक लास्ट बार फटाफट से। मैंने काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड की पॉइंट बी पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², है ना। तो मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैं एक इक्वेशन लगाती हूँ न्यूटन का, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, है ना। 2as होता है, बट यू नो ग्रेविटी और हाइट को देख के मैंने 2gh लिखा। मुझे v² जो इस टाइम पे वेलोसिटी है वो ये है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, सो v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, सो v² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, मुझे v² की वैल्यू मिल गई। मैं काइनेटिक एनर्जी में v² की वैल्यू डाल दूं, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सो हाफ mv² क्या है 2gh। अब देखो ये 2 से 2 कट, क्या बचा mgh। तो b पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, b पे काइनेटिक एनर्जी mgh। ठीक है, तो चलो हमें पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, दैट इज mgh। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है mgh। देखो अभी ये पॉइंट बी पे ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है h माइनस एक्स। कैसे, मैंने इस डिस्टेंस को सपोज x कंसिडर किया है, ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया है x। मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसका हाइट पूरा h तो नहीं लोगे, सो इट वुड बी h माइनस एक्स। ठीक है ना, अगर ये x है तो दिस हाइट वुड बी h माइनस एक्स। ठीक है, इतना तो क्लियर है। सो m g h क्या है h माइनस एक्स, जो डिस्टेंस है दैट इज h माइनस एक्स। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी। मैं टोटल एनर्जी b पे निकालूं, मैकेनिकल एनर्जी एट b इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थोड़ा यहां से लिखती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या है mg h माइनस एक्स प्लस mgh। क्या हम h कॉमन निकाल दें बाहर, ओ सॉरी नॉट h, mg है ना, यहाँ पे देखो mg mg, तो ये mg कॉमन निकाल दिया, क्या बचा h माइनस एक्स प्लस h। समझ रहे हो, ऐसा मतलब यू हैव टू जस्ट सिंपली सॉल्व दिस, है ना। सो यू वुड बी ऑब्जर्विंग दैट व्हाट यू वुड बी गेटिंग इज, देखो mgh, ठीक है 2h हो जाएगा ना, 2h माइनस एक्स। इज दिस टोटल एनर्जी मैचिंग विद दिस। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि हर जगह टोटल एनर्जी सेम है एट एवरी पॉइंट। तो तुम ध्यान से देखो, वी मेड अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक किया, देखो वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी करेक्टली, काइनेटिक एनर्जी वापस से देखो। काइनेटिक एनर्जी में मैंने क्या लिखा था, हाफ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। h, अब h मुझे क्या लेना है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के लिए h में ये लूंगी, दैट इज x, दैट इज दिस डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर करके आया x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2gx। ओके, सो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो v² क्या हो जाएगा 2gx h के बजाय, यू नो। समझ आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें पता है ना हाफ mv², और हमने v² का क्या फॉर्मूला निकाला 2gx, है ना। सो 2gx, तो ये 2 से 2 कट mgx मिला। सो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिली mgx। हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला mgx h माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स। अब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालती हूँ एट पॉइंट बी, इस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी।
पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgx। ओके, अब देखो ये क्या है, mgh माइनस mgx, ठीक है, mg को h के साथ मल्टीप्लाई किया, mg को x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस mgx। देखो माइनस mgx प्लस mgx कट हो जाएगा, what ultimately we get is mgh। क्लियर, ठीक है। एक लास्ट बार फटाफट से बता देती हूँ कैसे किया इसको, ठीक है। वी स्टार्टेड विद फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, है ना। सो मैंने क्या बोला कि वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम जी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ मैंने क्या बोला कि मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए वेलोसिटी आई शुड नो, सो आई वुड बी यूजिंग द one of the equation of Newton, that is v square minus u square is equal to 2as. As I said, because we are taking the vertical movement, I would be considering acceleration as acceleration due to gravity g. Displacement, कितना displacement हुआ, a to b x, ठीक है। So v square, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, यहाँ पे जब स्टार्ट किया तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ये वैल्यू पूरी जीरो, इज इक्वल टू 2gx। मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gx। 2 से 2 कट, मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या मिला, mgx। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद हमने क्या निकाला, हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, mgx। अब मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। यहाँ पे जो हम हाइट लेंगे ये ग्राउंड से लेंगे, तो इट वुड बी h माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस h है। इफ यू कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन a टू b इज x, so b to c it would be h minus x, okay, that is mg h minus x. So this is the potential energy at point b. Now I am finding mechanical energy, that is the total energy at this point b. So it is kinetic energy at point b plus potential energy at point b, that is kinetic energy क्या है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस एक्स, दैट इज mgx प्लस mgh माइनस mgx। ओके, mgx ये माइनस का साइन, समझ आया। सो ये माइनस mgx प्लस mgx कट, क्या बचा, mgh। तुम देखो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एट इज mgh। क्लियर। तो अब हम सी पे देखते हैं, जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है तब क्या होता है, लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh। ओके, अब तुम पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी पे अगेन इफ यू सी द पोटेंशियल एनर्जी, that is mgh, फॉर्मूला mgh है, mg हाइट कितना बचा, यहाँ आ गया जीरो, सो जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज जीरो, यानी ग्राउंड पे आते ही पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ v, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे जो हम h लेंगे ना वो पूरा लेंगे, यहाँ पे पहले x था, अब जो है पूरा है, दैट इज h। तो यहाँ पे जो v स्क्वायर की वैल्यू होगी, क्योंकि u तो क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, हाँ। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू डाल रहे हैं,
जो आंसर मिला वो क्या मिला, mgh. So kinetic energy at point C is mgh. Potential energy at point C is 0. समझ में आया, क्योंकि हाइट जो है वो 0 हो गया इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0. काइनेटिक एनर्जी हमने पहले V की वैल्यू फाइंड की यूजिंग दिस इक्वेशन और फिर काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट की तो हमें mgh मिला. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है. तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालती हूँ, ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh 0, पॉइंट सी है ना, नीचे आगे तो 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिली, mgh. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज mgh. इफ यू ऑब्जर्व मैकेनिकल एनर्जी at point A is equal to mechanical energy at point B is equal to mechanical energy at point C is equal to mgh. तुम तीनों में देखो mgh mgh mgh. ये मैंने रिलेशन भले ही टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये बता रहा है कि तुम इस पॉइंट पे देखो, तुम इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो, द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. भले ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है. भले ही ये दोनों चीजें चेंज होती रह रही है बट ओवरऑल टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज mgh. क्लियर? सो दिस वाज द डेरिवेशन एंड द प्रूफ ऑफ दिस लॉ कि एनर्जी जो सिर्फ इंटरचेंज हो रही है बट इट इज नॉट क्रिएटिंग नॉर डिस्ट्रॉइंग, है ना, दैट इज देयर इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी. इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग विथ पावर. ओके, सो दिस वाज अबाउट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एंड दिस फॉर पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या रहेगा, जूल ही रहेगा, because it is one kind of energy. Okay, so from next class we will be starting with power.